Good morning class. In the last previous lecture we have learned about the separation of the particular mixtures. हमारे पास जो मिक्सचर्स है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स, एक तो लिक्विड मिक्सचर था एंड सेकेंड इज द मिक्सचर विच इज नोन एज सॉलिड. इसमें से मैंने किसके लिए सेपरेटिंग फनेल यूज़ किया और कौन से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मैंने सब्लिमेशन यूज़ किया. सो मैंने टॉक अबाउट लिक्विड तो मैं बोलूँगी कि इसके लिए मैंने सेपरेटिंग फनेल प्रोसेस यूज किया. सी एंड फॉर द पर्टिकुलर आई हैव जस्ट यूज्ड द व्हिच मेथड सब्लिमेशन. और चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रिंसिपल जस्ट क्विकली रिवाइज. लिक्विड ऐसे लिक्विड which are not miscible with each other. They are not miscible with each other, or we can say that they are immiscible liquids. Immiscible liquids, that means they are not mixed with each other. When I am talking about solid, so one solid is non-volatile, that means even on heating they are not going to vaporize, and one solid is volatile. So हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं सब्लिमेशन का. इट इज सेपरेट आउट द सॉलिड्स टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन. हमने देखा था वॉलेटाइल में हमने लिया था कौन सा सब्सटेंस NH4Cl, और हम इसे बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड. नॉन वॉलेटाइल में हमने क्या लिया था सॉल्ट. हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को मैंने क्या किया था सेपरेट किया था बाय द यूज ऑफ सब्लिमेशन. एंड हियर what I have taken is I have taken oil and water. Oil आप कोई भी देख सकते हो, मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, कोकोनट. So that is all about what? That is all about the processes which we have learned in the last previous class. Now today we learn about the more two techniques, evaporation technique and centrifugation technique. अब evaporation किसके लिए है? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए. सॉलिड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा लिक्विड. अब ये जो सॉलिड है वो भी कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल है. हमने ये देखा था सॉलिड. अब सॉलिड लिक्विड के लिए जो टेक्निक यूज हो रही है वो है इवापोरेशन, जिसमें सॉलिड सॉल्यूट कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल. दैट मीन्स हम लेंगे सॉल्ट और लिक्विड में हम लेंगे जो वॉलेटाइल है वो है वाटर. सो इवापोरेशन टेक्निक का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. देन वी आर जस्ट मूविंग ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप ऑफ मेथड. ओके, सो विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ द प्रोसेसेस टुडे. Just discuss about both of the process. Here I am having a separation technique, children. So when we talk about the evaporation, so evaporation is used for which type of non-volatile? It is used there for non-volatile solute. वो solute कैसा होगा? Solid, children. It is solid which is dissolving liquid. तो वो liquid कैसा होगा? Volatile. तो ये evaporation process का principle क्या लिखेंगे हम? That principle is it is used to separate out solid liquid mixture. वो solid कैसा होगा? Solid is non-volatile solute and liquid is volatile solute. So it is based on the fact that liquid vaporizes easily whereas solid does not. Solid require heating. तो मैंने क्या किया है? I have taken the evaporating dish. मैंने evaporating dish लिया है जिसमें मैंने मिक्सचर लिया हुआ है salt and water. Here you cannot see, so I just again named or labeled it salt and water. I have taken. ये जो आप apparatus देख रहे हो इसे मैं बोलूँगी evaporating dish. आप बीकर भी ले सकते हो. Glass beaker you can take. Here I have taken evaporating dish. Then you can see the wire gauze on which I have kept it. And then I have used a tripod stick. Okay, children. It is wire gauze. And that is a tripod stick. Here you can see whatever that particular stand is there, which is known as tripod stand. Now what I am going to do is when I am just going to apply the heat. So what happened? Whatever the volatile solvent is there, it starts to evaporate. And we know that that volatile solvent is nothing but it is water. And whatever the non-volatile substance solute is there, it is remain as it is, which is known as after evaporation, you are getting salt. Only salt which is remain as it is in the beaker.
So that process is known as what? That process is known as evaporation. Now, where it is used? It is used for obtaining salt from seawater. ये जहाँ पे यूज होता है वो है seawater. अब हम नई प्रोसेस पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. सो ये कैसी पर्टिकुलर प्रोसेस कहाँ पे यूज होती है? तो सस्पेंडेड particles in liquid which are too small to be retained by filtration. फिल्ट्रेशन से भी अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में से फिल्टर्ड आउट नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है सेंट्रीफ्यूगेशन. अगर आप मिल्क लेते हो और मिल्क को अगर आप फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स बाय द यूज ऑफ स्ट्रेनर, अगर आप इसको व्हेन यू जस्ट स्टार्ट टू filtered out that small particles of milk inside present in the milk, तो वो होगा नहीं. क्यों? क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल्स की जो साइज है वो स्मॉल है, इसकी वजह से वो क्या होगा? इट इज़ इजीली सेपरेट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. सो ऐसे पर्टिकुलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है लिक्विड, उसे सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड. एंड फॉर दैट द मशीन विच इज यूज्ड दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जिसमें अलग अलग दो टेस्टिंग है. इट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर. अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन को अंदर से देखो तो वो ऐसे होगा. ये जो राउंड है उसमें जो ये राउंड देख लो, ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है, या तो आप उसे बोल सकते हो टेस्टे बोल सकते हो, छोटी छोटी ग्लास की तरह, जिसमें हम लोग वो जो भी पर्टिकुलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाला मिक्सचर है, सपोज मिल्क है, क्रीम फ्रॉम मिल्क निकालना है, मिल्क में से क्रीम बनाना है, तो मैं कौन सी मेथड यूज़ करूँगी? तो मैं यूज़ करूँगी विच मेथड? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. घर पे आपने देखा होगा मम्मी अगर बटर बनाती है, मक्खन बनाती है, घी बनाती है, तो क्या करेगी? इट इज़ यूजिंग अ ग्राइंडर. अभी तो ग्राइंडर आ गए हैं, पहले के ज़माने में रोटेटर थे जो हाथ की वजह से वेन जस्ट मूविंग लाइक दिस एंड यू आर गेटिंग द particular butter, whatever the material, a lighter density material is there float on and which is जिसमें से बटर मिल्क बनता था. बहुत अप्लाइंग फोर्स से स्पीडीली उसको रोटेटिंग करते थे. ये प्रोसेस हमने देखी है. वॉशिंग मशीन को हमने देखा हो तो क्या करेगा? वेट क्लोथ्स आर देयर इनसाइड विच आर डर्टी, इट स्क्वीज आउट द पर्टिकुलर डर्ट मटीरियल, डर्ट पार्ट, रिमूविंग आउट डर्ट एंड मेक द क्लोथ क्लीन. तो वॉशिंग मशीन को भी मैं बोल सकती हूँ कि वो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन की बेस्ड ऑन प्रिंसिपल पे काम करता है. चिल्ड्रन, ब्लड, हमारा जो ब्लड है उसमें अगर डॉक्टर रिपोर्ट करने के लिए बोलता है तो हमारे पास होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट. तो ये कैसे सेपरेट होते हैं? तो बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन. तो उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल है कि अगर मिक्सचर रोटेट होता है विद द वेरी फास्ट स्पीड, the mixture which is there inside in that centrifugal machine, rapidly rotated machine with a high speed mixture with high speed rotating in the rotating motor or machine. Okay, so what happened? Denser particles जिसकी density ज़्यादा है वो सेटल डाउन. ये जो सेटल हुआ है वो कैसा है? हाई डेंसिटी का है, हाई डेंसर मटेरियल. और चूंकि दैट मीन्स डेंसर पार्टिकल्स आर फ्रॉम टू गो टू द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप. तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन के प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है. सेंट्रीफ्यूगल मशीन इज देयर हैविंग 4 चैम्बर इनसाइड इन इट. 4 चैम्बर रहते हैं जिसमें आप जिसको भी सेपरेट करना है वो लिक्विड को या तो वो मिक्सचर को डालोगे एंड विद द हाई स्पीड इट इज रोटेटिंग, कंटिन्यूसली रोटेटिंग. आफ्टर अ टाइम व्हाट यू जस्ट ऑब्जर्व दैट व्हाट एवर द लाइटर पार्टिकल्स दे स्टे एट द टॉप एंड व्हाट एवर द डेंसर पार्टिकल्स दे जस्ट सेटल एट द बॉटम. अगर मेरे पास 3D इमेजेस को मैं अगर ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो लाइटर होंगे और यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो हायर डेंसिटी. ये लाइटर डेंसिटी वाले होंगे या तो लो डेंसिटी वाले होंगे एंड दिस इज ऑफ द हायर डेंसिटी. चिल्ड्रन, सो मैं क्या बोल सकती हूँ? इसका प्रिंसिपल है
this method is used for the suspended particles which are present in the liquid, which are not going to be the filtered out by the filtration method. जो filtration method से भी filter नहीं होते हैं, इसके लिए हम centrifugation method use करते हैं. तो centrifugation method कौन से principle पे work करता है? तो when a mixture is there taken in the rotating rotor or a motor or the centrifugal machinery with a higher speed, it is continuously rotating, and whenever it rotated very fast, whatever the lighter particles, whatever the particles having a low density, they settle at the top, वो ऊपर रहेंगे, और जिसकी डेंसिटी हाई है वो नीचे बैठ जाएंगे, और उसी तरह आप उसे सेपरेट कर पाओगे. तो कौन सी एप्लीकेशन टेक्निक को कहाँ पे यूज होती है? nowadays where it is used. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि it is used to separate cream from milk. वो मिल्क को क्रीम से अलग करने के लिए यूज होता है. वॉशिंग मशीन में स्क्वीज ऑफ वाटर फ्रॉम द वेट, डर्ट पार्ट है, वाटर इसको रिमूव करने के लिए यूज होता है. तीसरा, इट इज यूज्ड फॉर द ब्लड. इट इज यूज्ड फॉर द just separate out the RBC, WBC as well platelets from the blood. अगर ब्लड को हम देखते हैं तो ओरिजिनली रेड है, हमें उसमें दिखेगा नहीं कि ये रेड ब्लड सेल है, ये वाइट ब्लड सेल. फिर भी हमें रिपोर्ट में दिखता है कि आपके RBC इतने हैं, आपके WBC इतने हैं. तो वो कौन सी मेथड से सेपरेट आउट होते हैं? बाय द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. नाउ विल जस्ट हैव अ लुक व्हिच वी हैव लर्न इन द लास्ट वीडियोस. सेपरेटिंग फॉर्म कौन से लिक्विड के लिए? तो immiscible liquids which are not mixed with each other. ओके, तो ऐसे के लिए मैंने अभी बोला कि जो भी लाइटर डेंसिटी है, लोअर डेंसिटी किसकी होगी? ऑयल और वाटर में से. तो इट इज देयर फॉर द ऑयल, एंड हायर डेंसिटी होगा वो कौन होगा? वाटर. सेपरेट कर सकते हैं उसको. कहाँ पे यूज होता है? तो इट इज यूज टू सेपरेट आउट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. आयरन नेल्स जो भी है वो बनती है उसके ओर में से, तो उसमें से स्लेट जो है उसको अलग करने के लिए यूज होता है. सब्लिमेशन जो हमने देखा था प्रोसेस, दिस इज द मेथड यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन विच द सब्सटेंस इज इजीली सब्लिम, और हम बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को वॉलेटाइल सॉलिड में से अलग करने के लिए. हमने डायग्राम भी देखा था लास्ट प्रीवियस स्लाइड में, आप देख सकते हो कि एक चाइना डिश लिया था जिसमें मैंने मिक्सचर लिया था अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. अमोनियम क्लोराइड कैसा है? नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सॉल्यूट है. एंड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द सॉल्ट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. दोनों के मिक्सचर का अपीयरेंस सेम है, एक जैसा है, जिसकी वजह से आप उसे डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे? उसे इन्वर्टेड एक फनेल उल्टा रख देंगे, उसको कॉटन प्लग से ढक देंगे और हीट जब भी अप्लाई करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड पहले कौन से फॉर्म में जाएगा? वेपर फॉर्म में. एंड देन आफ्टर ड्यू टू दैट कॉटन प्लग वो कंडेंस्ड होगा, कूल डाउन होगा, और इट इज गोइंग टू बी स्टिक्ड ऑन द वॉल ऑफ द फनेल. तो वो सॉलिडिफाइड हो गया. हम दैट मीन्स पहले मेरे पास सॉलिड अमोनियम क्लोराइड था, हीट दिया मैंने उसे पहले, तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ. NH4Cl is the symbol for ammonium chloride. Again cool and condensed हुआ. तो आप पूछेंगे कि मैडम ये कूल और कंडेंस कैसे हो गया? तो when you remove out that burner and when you just stop it by the, or when you just closed it by the cotton plug, it is going to be converted again in the solidified ammonium chloride. So here you cannot see any kind of a liquid state. So you can say that it is used to separate out solid mixture where one is volatile. अगर मैं इसे बोलूँ तो ये volatile है, volatile means it is easily vaporize on heating, whereas salt it does not vaporize on heating, so it is non-volatile. तो ये इसके लिए यूज होता है children. So when we talk about it application, कहाँ पे यूज होता है? तो iron can be separated from iron filling and camphor, या तो common salt can be separated. Common salt is nothing but the salt which we are using. So that is all about today children. In the next previous lecture or a class, we are just going to learn about
the remaining processes, that is chromatography and distillation, children. So please keep in touch with all the diagram. Please study, go thoroughly with it. If you have any doubt, please kindly contact on helpline number. Thank you.